So it's time, let's start now. Okay. A very good evening to one and all. Myself, Anukriti Rai, coordinator of the series organized by Expressions in Languages Arts Foundation, extend my heartiest greetings to Dr. Sumedha Devedi, the speaker this evening, and all our friends and participants who have joined us. Expressions in Languages and Arts Foundation is a Lucknow-based organization of academicians promoting research on Indian studies and Indology related issues at national and international levels. It aims at compilation, translation, and conservation of different cultural texts in different Indian studies. So, the song of Expressions in Languages and Arts Foundation is being played here for your kind attention and reception.
In very short, we would like to draw the attention of the participants, us celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav with young academicians and scholars. As we all are aware that it is an initiative of the central government to celebrate and commemorate 75 years of India's independence, the objective behind is to showcase the journey of new India and celebrate the contribution of freedom fighters. तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे श्रृंखला का नाम भाषा, साहित्य और समाज, काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद है. Now I hope that we are very clear with the purpose and objective of the series. So before moving ahead, I would request all the participants to please check their mic and mute themselves. I am glad to introduce before us the speaker this evening, Dr. Sumedha Dwivedi. Dr. Sumedha Dwivedi is an alumna of Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, and she has previously worked in the fields of cultural studies. Her research work is on Parsi literature, and she has published numerous research papers at various national and international seminars and conferences. So before us, she would be presenting her views on Zoroastrians and the national consciousness today. So over to you, Dr. Sumedha. Thank you, Anukriti. टॉक की शुरुआत करने से पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी चेयरपर्सन एला फाउंडेशन प्रोफेसर आरपी सिंह, सेक्रेटरी डॉक्टर कुलवंत सिंह, एला फाउंडेशन की सलाहकार डॉक्टर अलका सिंह एंड मिस अनुकृति राज को फॉर हर कोऑपरेशन विद एवरीथिंग रिगार्डिंग द टॉक. थैंक यू सो मच. तो आज का मेरा टॉक का टॉपिक है Zoroastrians and the national consciousness. A little bit about the Zoroastrian history. Zoroastrians or the Parsi community in India, they came to India in around 3rd and 5th century. तो ये इनको जब religious persecution हुआ अपने country में, that is Persia, आज की डेट में जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं, तो जब इनको वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ तब इनको ये पता था कि एक ऐसा कंट्री है हमारे से दूर, एंड बिकॉज इंडिया के एंड पर्शिया के पुरानी ट्रेड रिलेशंस थे, तो इसलिए इनको ये पता था कि अगर ये इंडिया आ जाएंगे तो ये अपनी कल्चरल एंड अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को सेफ रख पाएंगे और इनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कंट्री. सो 3rd and 5th सेंचुरी में परसिक्यूशन हुआ. परसिक्यूशन कोई एक दिन नहीं होता, परसिक्यूशन एक लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे रिफ्यूजीज आगे बढ़ के और अलग अलग देशों में जाते हैं. दैट इज वाई रिफ्यूजी क्राइसिस कई सालों तक चलती है. एंड जब ये फाइनली इंडिया में आ गए तो ये एक गुजरात के साउथ गुजरात के कोस्टल टाउन नोन एज संजान में आके उतरे, जहाँ के राजा ने इनसे 4-5 शर्तें रखवाई और उसके बाद इनको बोला कि आप हमारी कंट्री में रह सकते हैं और यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं. तो इस एक ज्योग्राफिकल जो एक डिसलोकेशन हुआ इनका, जो इनको इनके देश से निकाला गया, और एक जो इनके हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थे कि भाई हम भी ऐसा, अब अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचिए तो इंडिया भी ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी उनके कंट्री में आए जो कि उनके लोगों को कन्वर्ट करने लग जाए और फिर जो हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो गायब हो जाए. तो उनके जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थे उनको मद्देनजर में रखते हुए जो इनके ऊपर शर्तें रखी गई वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा लाजमी थी, बहुत सही थी, और उन शर्तों की वजह से इनकी एक बहुत ही यूनिक पारसी आइडेंटिटी फॉर्म हुई, जो कि एक एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी है, क्योंकि इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी तो ज़ोरास्ट्रियंस है. पर सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ज़ोरास्ट्रियंस के कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं, पर सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये कम्युनिटी पारसी कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब जो इनका रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको एक तरफा करते हुए ये एक एथनिक आइडेंटिटी मानी जाती है. तो एक तरीके से
ये इंडियंस भी हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ रह रहे हैं पिछले 1300-1400 साल से, और कहीं ना कहीं ये आज भी उस अपने आप को वैसा ही रिफ्यूजी मानते हैं जो इनके पूर्वज अपना देश छोड़कर आए थे। अब पारसी आइडेंटिटी को लेके बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया है, बहुत सारे लोगों ने इस पे टिप्पणियां की हैं, और 1906 में एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने विद रेफरेंस टू बॉम्बे पारसी पंचायत एक बेंच बैठाई जिसमें कि उन्होंने बोला कि आप ये डिसाइड करिए कि पारसी आइडेंटिटी है क्या। और उस बेंच ने ये डिसाइड किया कि पारसी आइडेंटिटी सिर्फ इंडियंस की है, दैट इज जो जोरास्ट्रियंस इंडिया में आके सेटल हुए, जिनके फोर फादर्स इंडिया में सेटल हुए, ओनली दे कैन बी कॉल्ड पारसीज एंड नोबडी एल्स। बाकी जितने भी लोग, बिकॉज प्रोसिक्यूशन रहा तो सिर्फ इंडिया में नहीं आए, वो हर डायरेक्शन में हर कंट्री में गए, और जिस जिस कंट्री में गए वहां के लोग जोरास्ट्रियंस कहलाएंगे, ना कि पारसी। तो इसीलिए सिर्फ इंडिया में ये कम्युनिटी है और मिलती है। और अब ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज्यादा माइग्रेशन हो गया है टू यूएस, कनाडा, यूके, तो इसलिए अब वहां पे पारसीज काफी तादाद में पाए जाते हैं। 19th और 18th एंड 19th सेंचुरी में एक बहुत ही ज्यादा शिफ्ट आया इस कम्युनिटी में, जहाँ की हमने देखा कि जब ये कम्युनिटी यहाँ आई थी तो इन्होंने परमिशन ली थी हर तरीके का काम करने के लिए। तो ये बिजनेसमैन भी थे, ये ट्रेड भी करते थे, ये इन्होंने मिलिट्री भी ज्वाइन करी, और क्योंकि इंडिया में बहुत छोटे छोटे राज्य थे तो ये हर राज्य के छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, और इन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया। इनके बच्चे, इन्होंने एक नई लैंग्वेज निजात करी जिसको पारसी गुजराती के नाम से जाना जाता है। वो एक गुजराती लैंग्वेज का एक अलग डायलेक्ट है जो कि जिसमें पर्शियन टच है। इन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी निजात करी, ये अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। इनकी जो वाइफ्स थी, डॉटर्स थी, उन्होंने साड़ी अडॉप्ट की ताकि ये धीरे धीरे हमारे बीच हमारे ही साथ समा जाए। और 18th और 19th सेंचुरी में जब इंडिया में नेशनल कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ने लग गई, जब हमारे यहाँ लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हमें कॉलोनियलिज्म से हटना है, हमें ब्रिटिशर्स को अपने देश से हटाना है और अपनी आइडेंटिटी क्लेम करनी है, तब उस टाइम पे इस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब इंडियंस में राजा महाराजाओं के पास पैसे हुआ करते थे, तब पारसी कम्युनिटी के ट्रेडर्स के पास बहुत पैसे हुआ करते थे, और ये नेशनल मूवमेंट को फाइनेंशियली हेल्प करते थे। उनको बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनमें उनको पैसे दिया करते थे अपना नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए। एंड वन फर्स्ट पर्सन जिसको हम सब जानते हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, दैट इज मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग डिजाइन किया था, फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट फ्लैग। अगर आप फ्लैग के डिजाइनिंग की एक हिस्ट्री देखें तो अराउंड हमारे पास 16 to 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडियन फ्लैग्स थे बिफोर हम फाइनली आज जो हमारा फ्लैग माना जाता है उस पर आए। तो जो फर्स्ट इंडियन जो नेशनलिस्ट फ्लैग था इंडिया का, वो मैडम बीकाजी कामा ने डिजाइन किया था और उसको लहराया भी था। फिर उसके बाद आप आइए एक और बहुत प्रोमिनेंट पारसी जैसे कि दादा भाई नावरोजी। तो दादा भाई नावरोजी इकोनॉमिस्ट थे, और दादा भाई नावरोजी जो यूके का पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम जो है, वहां पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि वो हर देश से जिसको उन्होंने कॉलोनाइज किया था उस देश से एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्री में भेजते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। एंड दादा भाई नावरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये गुहार उठाई थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स को हमें इंडिपेंडेंस देके कॉलोनियल रूल को खत्म करना चाहिए। तो आप देखिए धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितने सारे हर फील्ड में ऐसे पारसीज हैं जिनके अंदर जो एक नेशन की कॉन्शियसनेस होती है कि नेशन बिल्डिंग कैसे होती है, उसमें कितना
गहरा और कितना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि बीपी वाडिया, जिन्होंने पहला वर्कर्स यूनियन बनाया था और लोगों को समझाया था कि क्यों हमें वर्कर्स यूनियन की जरूरत है। कावसजी जहांगीर रेड्डीमनी, जिन्होंने इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया और इनकम टैक्स की शुरुआत कराई। सर फिरोज शाह मेहता, जो कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और उसके चेयरपर्सन भी थे। पारसीज की वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया विद द फाउंडर ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज एंड टाटा ट्रस्ट, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने लिटरली एक तरीके से एक टाइम पे 25% इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दी और उनको बहुत एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं और अपनी कंट्री की, उनको किसी बाहरी देश की कंपनी में और वहां पे जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो अपने देश के कंपनीज में अपना कुछ काम कर सकते हैं। पारसीज पहली ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने इस बात पे स्ट्रेस दिया कि लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए। ये उस जमाने में था जब लोगों का ये विश्वास था कि लड़कियों का काम सिर्फ घर में है, वो बहुत अच्छी वाइफ्स बन सकती हैं, हाउस वाइफ्स बन सकती हैं, वो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से देख सकती हैं, पर उनको पढ़ाई लिखाई कराने का क्या फायदा, उनको कौन सा नौकरी करनी है। तो पारसीज ऐसे कम्युनिटी थी, पहली ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने अपनी घर की बेटियों को स्कूल भेजा। और एक जो टैबू था लड़कियों की एजुकेशन के अराउंड, जो एक लोगों के अंदर एक डर था कि नहीं हम अपनी बेटी को अगर स्कूल भेजेंगे तो उसकी बदनामी हो जाएगी, उसको हटाया और ये बताया कि लड़कियों को एजुकेट करना कितना जरूरी है एक देश को बचाने के लिए, एक देश की रचना करने के लिए लड़कियों की एजुकेशन की कितनी जरूरत है। और इसमें एक पारसी गर्ल स्कूल एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ बॉम्बे में, जिसने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई। बहुत फेमस थ्योरिस्ट हैं होमी के भाभा, ही इज ऑल्सो अ पारसी। ही इज द वन जिन्होंने हमें कल्चरल स्टडीज से इंट्रोड्यूस कराया मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे लोगों को कल्चरल स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन्होंने एक बुक लिखी लोकेशन ऑफ कल्चर, और उसमें बहुत ही कायदे से, बहुत अच्छे से कल्चर किस प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ होता है और कैसे हर घर का कल्चर अलग अलग होता है और उसकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में क्लियरली हमें बताया। फिर एक और हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जे भाभा, जो जिनके नाम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ही वाज द वन जो न्यूक्लियर साइंस में जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड के सामने खड़ा किया। फिर फरदून जी मर्जबान, जिन्होंने बॉम्बे समाचार की स्थापना करी। रुस्तम जाल वकील, जो कि एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। गोदरेज का नाम कौन कौन नहीं जानता है, हम सब गोदरेज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सो पीबी गोदरेज इज अ पारसी। और एक बहुत फेमस पारसी कॉल्ड कायक्रॉफ डी ईरानी, ये एक फिजिसिस्ट थे और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्टूडेंट थे। तो ये लंदन में रहते थे उस जमाने में, ये रिलोकेट किए थे लंदन। तक, जब इंडियंस का मोराल बहुत लो था क्योंकि हम 3 वॉर्स हार चुके थे, एंड फील्ड मार्शल सैम मॉनिकशॉ लेड अस टू आवर फर्स्ट विक्ट्री इन 1971, जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। देन लेफ्टिनेंट कर्नल आर्दशीर तारापुर, जो कि जिनको अपनी गैलेंट्री के लिए परमवीर चक्र मिला था। और ऐसे बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स लाइक एडमिरल जाल खुर्शीद जी, who was the former chief of naval staff, air marshal, SP engineer, chief of air staff. Then आप देखिए इनकी कम्युनिटी में इतना ज्यादा एम्फेसिस था लड़कियों की एजुकेशन के लिए कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल फोटोग्राफर वाज हुमायूं व्यारावाला। सो आप अगर हुमायूं व्यारावाला के बारे में पढ़िए, शी डाइड अ फ्यू इयर्स अगो, 4-5 years बैक, आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसी फील्ड जिसमें मेल डोमिनेंस था,
उस फील्ड में उस लेडी ने कैसे अपने पैर जमाए और कैसे इतनी फेमस हो गई दैट शी वाज गिवन अवार्ड्स फॉर हर वर्क. Then very famous Parsi, Freddie Mercury, who was a musician. He was Farid Balsara, but then जब वो UK गए और उन्होंने अपनी identity change करी, so he was Freddie Mercury. Then J.J. Modi, Fali Nariman, who is a jurist, he's a Padma Vibhushan. Cornelia Sorabji, she was the first graduate from Bombay University. And Soli Jahangir Sorabji, he was the former Attorney General of India. Rohinton Nariman, he is a judge in the Supreme Court of India. और अब एक लिस्ट है लंबी, जिसमें का शायद मैंने आपको 5% भी नहीं बताया. मैंने बहुत कम फेमस पर्सनालिटीज के नाम लिए हैं बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट. बट एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें इन्होंने हर फील्ड में अपने इतना कंट्रीब्यूशन किया है इनटू नेशन बिल्डिंग कि एक तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जिनके बल पे हम वर्ल्ड ओवर जाने जाते हैं, जिनके लिए हम फेमस हैं. एंड दोज आर फ्रॉम पारसीज. लाइक द टाटा ट्रस्ट इज फेमस फॉर इट्स चैरिटी एंड इट्स रन बाय अ पारसी. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में तो मैं अभी नहीं जा पाऊंगी. बट एक तरीके से इंडिया को एक दुनिया के पायदान पे खड़े होने पे और दूसरे कंट्रीज से कॉम्पीट करने में पारसीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है. अब चाहे आप ये सोचिए कि इस वजह से रहा है क्योंकि जब ये इंडिया आए थे तो इनके ऊपर एक शर्त रखी गई थी कि आप हमारे देश को बढ़ने में और उसकी बढ़ोतरी में हेल्प करेंगे, या तो उस वजह से या फिर इस वजह से कि इनको पता था कि देश ना होना कैसा होता है. इनको ये पता था कि एज रिफ्यूजीज हम कि हमारा क्या स्टेटस हो सकता था. हम जब ये अपने कंट्री में, आज की डेट में पारसीज आर अ माइनॉरिटी इन ईरान. इन द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन दे आर अ माइनॉरिटी. सो एक तरीके से ये एक ऐसे देश में आए जहां पे आके ये मैक्सिमम नंबर्स में फ्लरिश किए. तो शायद इसलिए कि इनको अभाव था अपने देश का, दैट देयर वाज अ लैक ऑफ रूट्स. इनके जो रूट्स थे वो कहीं और थे और ये इंडिया आए थे. एंड मे बी दैट इज व्हाई इनके अंदर एक जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी, कॉन्शियसनेस टू build a nation and be known for building that nation, वो बहुत ज्यादा थी और आज भी है. एक तरीके से आप देखिए कि और ऐसा नहीं था कि इनको सब जगह शेल्टर ही मिला, है ना. तो एक जो इनके अंदर ये कॉन्शियसनेस थी कि हाँ, हमें कहीं और शेल्टर नहीं मिला. पारसीज वेंट टू पाकिस्तान ऑल्सो, Parsis went to Afghanistan also, Parsis went to China also. Parsis अगर ईस्ट में माइग्रेट किए परसिक्यूशन के टाइम पे, तो पारसीज वेस्ट में भी माइग्रेट किए, पारसीज अपने नॉर्थ में भी माइग्रेट किए होंगे और पारसीज अपने साउथ में भी माइग्रेट किए, बिकॉज ये मेजॉरिटी कम्युनिटी थी. तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे पारसीज पर्स में आके और सारे के सारे इंडिया में आ गए, बिकॉज इंडिया की जो स्टोरी है वो तो कहती है कि ये सिर्फ 7 से 11 बोट्स में आए थे संजान में. तो ये हर जगह माइग्रेट किए. पर ऐसा क्या है कि ये सिर्फ इंडिया में आके इन्होंने फ्लरिश किया और बाकी सब कंट्रीज में बहुत रेयर आपको पारसीज मिलेंगे जो आज भी हैं, या तो वो वहां से माइग्रेट कर चुके हैं किसी और देश में, या तो शायद इनके अंदर ये एक सेंस ऑफ एक तरीके से दे वर थैंकफुल कि हम, हाँ, एक कंट्री है और जिन्होंने हमें रिफ्यूज दिया है और हमें उस कंट्री के बिल्डिंग में अपना योगदान देना है और ज्यादा से ज्यादा देना है. तो इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पारसीज ने बिल्डिंग्स बनाई हैं. यू विल सी दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है महाराष्ट्र में, दैट इज कमिंग अप इन पारसीज हाउस. मतलब वो एक पारसी थे, उनकी एक पैती फैमिली थी जिनकी बेटी की शादी हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना से. शी वाज द सेकंड वाइफ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. एंड उनका घर है, उस घर को रिस्टोर करके उस फैमिली ने उस घर को गवर्नमेंट को दे दिया. एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट हम इस फैमिली को, हम इस घर को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बना देंगे महाराष्ट्र में. सो बॉम्बे में दैट
that house is being converted into Ministry of Culture. So एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो हैं मतलब आज की डेट में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की 70% बिल्डिंग्स वर they were made by the charity and that was done by the Parsis. So एक तरीके से एक बहुत ज्यादा forefront में आके इस community ने अपने आप को establish किया और अपने establishment के साथ साथ ये ensure किया कि आसपास वाले लोग भी आगे बढ़े, उनकी भी बढ़ोतरी होती रहे। और इसी चीज का मतलब और इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड दैट इज व्हाई इन्होंने एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए। वो अलग बात है कि अब एजुकेशन इतनी ज्यादा हो गई है और दैट कुछ पारसीज का कहना है कि एजुकेशन ज्यादा हो गई है इसलिए कम्युनिटी में जो कम्युनिटी का नंबर है, जितने मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, वो कम होते जा रहे हैं। तो हर साल पारसीज का जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ एक सर्टन मोर्टालिटी रेट की वजह से एंड बिकॉज जो इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं लोगों में, जो कि पारसी लड़कियां पारसी कम्युनिटी के बाहर शादी कर रही हैं या जो पारसी बॉयज हैं वो उसके बाहर शादी कर रहे हैं, शादी के तो उनके बच्चों को वो एथनिक आइडेंटिटी के वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं जो उनको देने चाहिए टू प्रिजर्व दिस आइडेंटिटी। और जो लड़कियां पारसी कम्युनिटी के बाहर शादी कर रही हैं उनको भी ये वैल्यूज मतलब उनके तो बच्चों को उनका मदर का रिलीजन फॉलो ही नहीं करने दिया जाता। तो इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आ गई है और दे हैव फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी अब ये माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी बन गए हैं बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर अराउंड 1,50,000 पारसीज। तो इनकी आइडेंटिटी को, इनकी एथनिक आइडेंटिटी को और इनकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की अब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत और कभी नहीं होगी। दिस इज हाई टाइम। आज ये काम आज के 10 साल 15 साल पहले होना चाहिए था, जो कि ये अब कर रहे हैं। और अब जाके कम्युनिटी इस पे काम कर रही है, वो अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, उन्होंने इंसेंटिव्स लगा रखे हैं। एक पारजोर फाउंडेशन है विच इज द पारसी ज़ोरास्ट्रियन फाउंडेशन जो कि यूनेस्को के साथ काम कर रहा है और उनके यहाँ इंसेंटिव्स हैं फॉर पारसी कपल्स जिनके एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो विद एवरी चाइल्ड उनको कुछ कुछ चीजें एज इंसेंटिव दी जाती हैं, जैसे कि अगर इफ इट इज अ सेकेंड चाइल्ड एंड इट इज अ गर्ल चाइल्ड तो उनको 15% ऑफ हर एजुकेशन दिया जाता है। इफ इट इज अ थर्ड चाइल्ड तो उनके मेडिकल बिल्स आर टेकन केयर ऑफ। बिकॉज इस कम्युनिटी के पास एक तरीके से देखिए तो पैसा बहुत है, बट वो पैसे से ये अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, एक कॉन्शियसनेस जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस आई है, ये सिर्फ अभी से आई है, ऐसा नहीं है। जब ये एक गुजराती में एक लोकल बहुत पॉपुलर कहानी है जिसको बोलते हैं बावाजीनी पलटन। So Babaji is the word used for Parsis in Maharashtra and Gujarat. वहाँ पे Parsis को local language में बाबाजी बोलते हैं। So Babajini Paltan is a 7th century 8th century poem और एक ये वर्स पोएम है जिसमें वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जब इंडिया पे इस्लामिस्ट इन्वेजन हो रहे थे हमारे वेस्ट के साइड से, बिकॉज वेस्ट से हम कनेक्टेड थे। सो वेस्ट के साइड से इस्लामिक इन्वेजन हो रहे थे और बहुत सारे ऐसे पारसी जनरल्स थे जो उस टाइम तक आर्मीज में स्टैब्लिश हो चुके थे और जिन्होंने इसको प्रिवेंट किया। एक इस रीजन से भी क्योंकि उनको अपना देश छोड़ना पड़ा था और उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये देश भी छोड़ना पड़ जाए। और दूसरा ये कि एक सेंस ऑफ ड्यूटी पारसीज के अंदर इतनी ज्यादा है जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के प्रति कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी हालत में हारे। और इसीलिए इफ यू सी एक वो मजाक में बोलते हैं कि अगर आपने पारसी के हाथ में किसी किसी वॉर में या किसी चीज की लीडरशिप थमा दी तो वो कभी हारेंगे नहीं या वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। बिकॉज एक इतना अच्छा इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जिस कंट्री में आए, कंट्री ऑफ अडॉप्शन में, कि नाउ दे कैन बोस्ट ऑफ द फैक्ट कि यस हम ऐसे हैं।
So that is it. I hope, Anukriti, I have done justice to the talk that I was given allotted and the time that I was allotted. And I hope in future we can, talk more on this and, elaborate and discuss more. Yes, thank you so much, Dr. Sumedha. It was really, I would just like to highlight, yes, we have time. I could just highlight your points. What you said, that, your talk highlighted the numerous contribution of the Indian Parsi community into building in what we know today as India. The map of development, freedom struggle, education, arts, cinema, etc., would all have been different if this minority community had not taken an active effort into considering their own. It also gave an insight in the cultural ethics of the community, which had allowed them to establish themselves as a well respected one in the country despite their dwindling numbers. So I think, that was really a very, thank you so much, Dr. Sumedha Dwivedi. It was really a very insightful. I believe that all the participants must have, altogether have different insight about the Parsi community, which were really, we were unknown, which the facts were very much unknown to most of us. So I would like to thank all the participants who have joined us and spared their precious time with us. And so again, we would be meeting tomorrow at 6:30 p.m. Okay, for another talk. Okay, and using the same platform. So at the end, we would like to play the song, the Expressions in Languages and Arts Foundation end song, and that I would be playing, and after that we would be ending the session. So now, once again, I would like to thank all the participants and especially the speaker, Dr. Sumedha Dwivedi, for today's session. And now I request all the participants to please leave this meeting. And tomorrow we will move, again, we'll be meeting at same timing. Okay, thank you one and all.
So I am ending the session here.